अब यहाँ पे हम लोग करते करते फिर मतलब क्या कट गया था, कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं ना। यहाँ पे क्या आंसर आपका 96 प्लस मतलब क्या आंसर आपका 11 प्लस मतलब क्या 23 और ऐड करना है इसको, है ना। और उसी तरह यहाँ पे फिर क्या आंसर आपका 73 प्लस क्या आंसर आपका 25 और प्लस क्या आंसर आपका 12 ऐड करना है इसको भी। और उसके बाद यहाँ पे क्या आंसर आपका 54 प्लस मतलब क्या आंसर आपका 41 प्लस मतलब क्या आंसर आपका 10 ऐड करना है यहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या आंसर आपका 25 प्लस मतलब क्या आंसर आपका 18 प्लस मतलब क्या आंसर आपका 0 ऐड करना है यहाँ पे, है ना। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग बात को समझते हैं। अब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इसको कौन सा एडिशन कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल एडिशन, है ना। तो 0 इज सिटिंग इन विच प्लेस? 5 is sitting in which place? And 2 is sitting in which place? 1's place. So we have to add them. 0 plus 5 is how many? 0 plus 5. And 5 plus 2 is how many? 7 ना। अच्छा अब ये बताइए, is anything in tens place here? No. So in tens place we have 7 and in tens place we have मतलब क्या आंसर आपका 6. So what is 7 plus 6? 7 plus 6. 13. So the final answer came as मतलब क्या आंसर आपको 137. So if I ask you what is the sum of 62, 75 and 0, then you have to say the sum of 62, 75 and 0 is मतलब क्या आंसर आपको 137. So now coming to this question, 3 is sitting in one's place, 1 is sitting in one's place and 6 is sitting मतलब क्या आंसर आपको 1's place. So 3 plus 1 is how many? 3 plus 1 is 4. And 4 plus 6 is how many? 10. 10. So 0 will be written मतलब क्या आंसर आपका 1's place and 1 will be carried to which place? Yes. 1 will be carried to which place? 10's place. 10th. You can put 1 in this 10's place if you want. You can put 1 in this place if you want. You can place 1 in this 10's place if you want, but the best thing is put the 1 in this 10's place. And now we have 2. Now this is the 10's place, this is the 10's place and this is the 10's place. So 2 plus 1 is how many? 3. And 3 plus 1 is how many? 4. And 4 plus 9 is how many? 4 plus 4 plus 9. 13. 13. So the final answer came as मतलब क्या आंसर आपका 130. Fine. Now coming to the next question. 2 is in 1's place, 5 is in 1's place and 3 is in 1's place. So 2 plus 5 is how many? 2 plus 5 is 7. 7 plus 3 is how many? 10. 10. Now 0 will be written in which place? 1's. 1's place. And is anything carried? Yes. What is carried? 1. 1 is carried. 1 is carried to मतलब क्या आंसर आपको which place? 10's. 10's place. So I have put the 1 here. Now 1 plus 1 is how many? 2. 2 plus 2 is how many? 4. 4 plus 7 is how many? 11. 11. So the sum is 1. 10, है ना. Now what do I have? 0 in 1's place, 1 in 1's place and 4 in 1's place. So 0 plus 1 is how many? 0 plus 1. 1. And 1 plus 4 is how many? 5. 5. So 5 will be written in which place? 3. 1 plus. 1's place. And is anything carried? No, nothing is carried. So 1 is in 10's place, 4 is in 10's place and 5 is in मतलब क्या आंसर आपका 10's place. So what is 1 plus 4? 5. And what is 5 plus 5? 10. 10. So what is the final answer? 105. So if I ask you what is the sum of 54, 41 and 10, then you have to say 105. the sum of 54, 41 and 10 is मतलब क्या आंसर आपको 105, है ना. Okay, good. So 0 is in which place? 1's. 1's place. 8 is in 1's place and 5 is also is in 1's place, है ना. So 0 plus 8 is how many? 0 plus 8. 0 plus 8 is how many? 8. 8 ना. And 8 plus 5 is how many? 13. 13. So 3 will be in 1's place and 1 will be carried to मतलब क्या आंसर आपका any of the 10's places, है ना. So I am putting 1 here. So 1 plus 1 is how many? 1 plus 1 is 2. And 2 plus 2 is how many? 4. 4. आया बात समझ में? यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं. चलिए ये भी काम हो गया. अब ये काम हो गया तो देखते हैं और आगे काम है क्या. अब देखो हम तो आपको शुरू से सॉल्व करा रहे हैं मेंटली, लेकिन अब यहाँ पे लिखा है कि सॉल्व मेंटली, है ना.
चलिए हम लोग मेंटली ही मतलब क्या करते हैं सर, आपको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व मेंटली का क्या मतलब होता है? मेंटल सॉल्व मेंटली का ये मतलब होता है कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, किस तरह हम बता रहे हैं आपको, रुक जाओ देखो। अच्छा आंसर लिखा हुआ है, क्या करें तब, एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए कॉपी को करते हैं बर्बाद, है ना, लेकिन थोड़ी देर के लिए पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी आंसर लिखा हुआ है, ये तो आप ऑलरेडी देख लिए, तब तक याद नहीं रहेगा, या हो सकता है आपका माइंड बहुत शार्प हो तब तक आपको याद रहे, ये भी हमको नहीं पता, है ना। तो सर यहाँ पे कुछ आंसर्स लिखा हुआ, कुछ आंसर्स नहीं लिखा हुआ, ऐसा क्यों? कुछ आता नहीं होगा। अच्छा जो नहीं आता था वो नहीं लिखा हुआ था, और जो आता था वो मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ है ना। गुड आंसर, सिंपल आंसर, है ना। सच्चाई मतलब क्या होता है, सिंपल ही होता है। अगर आप झूठ बोलते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। तो आप झूठ बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोलते हैं? कभी कभी नहीं बोलते हैं? कभी भी नहीं? कभी भी नहीं? अच्छा एक बात, एक सिनेरियो हम आपको देते हैं। आप खेल रहे हैं, वास गिर के टूट गया, तो मम्मी के आगे सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे? सच बोल। सच बोलेंगे, गुड। और पिटाई खाएंगे तो भी सच बोलेंगे, हाँ तब गुड, अच्छा गुड। चलिए यहाँ पे आवाज़ ही हम लोग सिंपल अब काम करते हैं, ठीक है ना। हमको नहीं पता आप फिज़िकल बैलेंस देखे या नहीं देखे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं यहाँ पे एक फ़िज़िकल बैलेंस मतलब क्या करने का, बनाने का, ठीक है। तो ये फ़िज़िकल बैलेंस हम बना रहे हैं, और यहाँ पे समझ लो कि मतलब क्या असर आपका, एक सर्कल बॉक्स सर्कल है, और एक मतलब क्या असर आपका स्क्वायर है, ठीक है। अरे भाई आ जाइए जल्दी से। अब यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएं, अब यहाँ पर भी एक हम सर्कल बनाएं और एक मतलब क्या असर आपका स्क्वायर बनाएं, ठीक है ना। लेकिन डिफ़िकल्टी पता है क्या है? एक डिफ़िकल्टी है, ये रहने दो। ये सब जब हम किए हैं ना, तो आप वहाँ पे मतलब क्या खड़े नहीं थे, और ये समझो दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तभी तो मतलब क्या असर आपका फ़ैन में है ना। आप मेरा बात समझ रहे हो? फिज़िकल बैलेंस होता है ना इस तरह का, ये समझो फिज़िकल बैलेंस इस तरह का होता है, इस तरह मतलब उसको मतलब क्या पैन पकड़ के रखता है, फिर मतलब यहाँ पे क्या होता है सर आपका एक डंडा होता है, उसको मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा पकड़ के मतलब क्या करता है, बाज़ार में कभी ना कभी देखे होगे। तो बात क्या है कि तुम सामने तुम आए नहीं थे, तो उस समय एक प्रोनाशियम ये किया कि हम इसको छिपा दिया, तुम विज़न को मतलब क्या ब्लॉक कर दिया, और तुमको ये बताया कि मतलब क्या है, देखो ये वाला पैन के मतलब क्या बराबर है। तो अगर ये वाला पैन में एक मतलब क्या असर आपका सर्कल है, ये पैन में अगर एक सर्कल एक स्क्वायर है, तो वो पैन में क्या होगा, आप बोलोगे दोनों बराबर अगर है, तो वहाँ पर भी मतलब क्या असर आपका स्क्वायर को ही होना पड़ेगा, और कुछ मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। ये लॉजिक आपको समझ में आया ना, भले ही छिपा हुआ क्यों नहीं हो। समझ के बाद क्या बोले ना, इसको और एक्सटेंड करना हमको तुम पता है क्या बोलेंगे। मान लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, और एक मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमको सर्कल अगर दिख रहा है और स्क्वायर अगर दिख रहा है, लेकिन हमको ट्राइंगल मतलब क्या नहीं दिख रहा है, बस लेकिन हमको ये पता है कि दोनों पैन एक दूसरे के मतलब क्या बराबर है, तो इंट्यूटिवली हमको पता चल गया कि मतलब क्या सर आपको जो छिपा हुआ है वो और कुछ नहीं है, ट्राइंगल ही है। नहीं तो मतलब क्या बराबर मतलब क्या हो सकता है सर आपका, हो नहीं सकता है। तो ये सेम लॉजिक नंबर के ऊपर भी तो अप्लाई होगा ना सर आपका। अगर यहाँ पे हमको दिख रहा है 1000 और यहाँ पे हमको दिख रहा है मतलब क्या सर आपका 50, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 50 दिख रहा है
लेकिन हमको मतलब क्या सर आपका 1000 दिखे या नहीं दिखे, लेकिन अगर दोनों पेन एक दूसरे के मतलब क्या बराबर है, इक्वल टू साइन है, तो दूसरा क्या होना पड़ेगा सर आपको 1000 ही मतलब क्या सर आपको होना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे बस क्या छिपा दिया है। अब जब छिपा दिया है तो क्या करना है सर आपका, उसको रिवील करना है, ठीक है ना। आइए, रिवील करने का मतलब अनकवर करना। तो यहाँ पे 2 एडेंट्स है। एक एडेंट का नाम क्या है सर आपको बताइए, 2468, और एक एडेंट क्या है सर आपका 1357। और ये बता रहा है यहाँ पे भी 2 एडेंट है, लेकिन एक एडेंट हम लोग की नज़र से मतलब क्या छिपा हुआ है, लेकिन दोनों बराबर है। तो दूसरा एडेंट को भी क्या होना पड़ेगा सर आपका 2468 ही होना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि आप 2400, हाँ ये तो आप गलत कर दिए। अब आपको समझ में आया हम कैसे गलत कर दिए। दोनों का आंसर मतलब क्या सर आपका हो सकता है 5172 हो, लेकिन जब दोनों को इक्वल बता रहा है तो इस पैन में जितना था उस पैन में उतना ही होना पड़ेगा ना। तो उस पैन में क्या रखना पड़ेगा, उस पैन में रखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 2468। अगर आपको चेक करना है कि मतलब दोनों बराबर है या नहीं है, क्योंकि बराबरी पहले से बता दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2468। ये आंसर यहाँ से निकल गया है, और प्लस कर देंगे मतलब क्या सर आपको 1 3 5 7, और ऐड करने के बाद देखेंगे 8 + 7 इज हाउ मेनी, 8 + 7 यस 15। तो 5 इज रिटन डाउन एंड 1 इज कैरिड टू मतलब क्या सर आपका 10th प्लेस। नाउ 1 + 6 इज हाउ मेनी, 7 एंड 7 + 5 इज हाउ मेनी, 12 7 + 5। हम बोले ना मेरा कंफ्यूज करने का मतलब क्या हैबिट है। तो 12 अगर है तो आप राइट आंसर पे अगर रहेंगे तो इंसिस्ट करना, रॉन्ग आंसर पे रहेंगे तो मतलब क्या इंसिस्ट मत करना। तो 7 + 5 इज हाउ मेनी, 12 ओनली ना। सो 2 इज रिटन एंड 1 इज कैरिड टू विच प्लेस, 1 is carried to 100th place. 100th प्लेस ना। सो नाउ 1 + 4 इज हाउ मेनी, 1 + 4 is 5. एंड 5 + 3 इज हाउ मेनी, 5 + 3 is 8. 8 ना। इज एनीथिंग कैरिड, नथिंग इज कैरिड। नाउ 2 + 3 इज हाउ मेनी, 2 + 1. 2 + 1. हाँ 5 1 It is written 1. 2, it is written 1 and nothing is carried ना। 2 + 1 is how many। Plus 1, 4. तो आप देखो, आप वो जो सोचे थे वो भी गलत सोचे थे, मतलब आप तीनों को ऐड कर दिए थे क्या। नहीं. तो फिर आंसर 5000 कैसे आ गया, आप तीनों को ऐड किया तभी तो आंसर 5000 आया ना। अगर आप तीनों को नहीं ऐड करते तो आंसर 5000 आ सकता था क्या, नहीं। अब हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2468 को 1357 से ऐड किए तो आया मतलब क्या सर आपका 3825 यानी 3825। अब उल्टा करके देखते हैं, जो हम आंसर लिखे हैं चेक करने के लिए 1357 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2468। अगेन 7 + 8 इज हाउ मनी, 7 + 8. Yes. 15. 5 written, 1 is carried to 10th place. So 1 + 5 is how many? 1 + 5. Yes, 6. And 6 + 6 is how many? 6 + 6 12. 12 ना। तो 2 written. Now what is carried? 1. 1 is carried. So 1 + 3 is how many? 1 + 3 is 4. And 4 + 4 is how many? 8. 8 is written and is anything carried? Nothing is carried. देखो इस तरह भी आया 3825, उस तरह भी आया मतलब क्या सर आपका 3825। इसका मतलब कि जो आंसर हम लिखे वो मतलब क्या सर आपका राइट है। आया बात समझ में ना। और यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी भी सीखे एडिशन का, कि एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब क्या, एडिशन में मल्टीपल्टी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ सर आपका, अगर 3 + 5 करे तो भी 8 आता है, और 5 + 3 करे तो भी मतलब क्या होता है सर आपका 8 आता है। इसका मतलब एडिशन मल्टीपल्टी आप कर सकते हैं, यू कैन चेंज द ऑर्डर इन एडिशन, आंसर डजंट चेंज। और दिस प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो आप हायर क्लास में आगे पढ़ेंगे। लेकिन सीख तो अभी गए आप, नाम बाद में पढ़ेंगे, है ना। आया बात समझ में। अब देखो ये आपके लिए थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अजीब नहीं है, पता है क्यों। 10 में कुछ ऐड करने से मतलब क्या हो रहा है सर आपका 12 बन जा रहा है। तो 10 में क्या ऐड करने से 12 बन रहा है सर आपका, जो 10
और 12 के बीच का क्या है सर आपका फ़र्क है। आपको हम क्या बताएं कि मैथ्स में आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है सर आपका प्रोसेस। हमको पता था, इसका आंसर आपको पता है, इसलिए ये एग्जांपल दिए, क्योंकि आप जो नहीं जानते हैं वो उसके द्वारा ही जान सकते हैं जिसको आप जानते हैं। तो आप इसको जानते हैं और इसको आप मतलब क्या कहते हैं सर आपका नहीं जानते हैं, तो इसके द्वारा आपको हम ये सिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, प्रोसेस। अगर प्रोसेस को जान जाओगे तो जिस तरह ये किए उस तरह ये भी कर पाओगे, और आंसर को जानोगे तो बस यही कर पाओगे, और ये देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जबकि ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना, बस नंबर का डिफरेंस है। लेकिन प्रोसेस के एतबार से दोनों तो मतलब क्या सर आपका सेम है ना, है ना। तो अब बताओ, तो 10 में क्या ऐड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 12 आएगा। 10 और 12 का डिफरेंस, 12 लेकिन डिफरेंस क्या होता है सर आपका, सब्ट्रैक्शन का आंसर। 12 minus 10 यस, मतलब 10 में हम क्या ऐड करेंगे जो 12 आएगा। 10 और 12 का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का आंसर। 10 में क्या ऐड करेंगे जो 12 आएगा। 10 और 12 का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस होता क्या है, सब्ट्रैक्शन का आंसर। व्हाट विल आई ऐड टू 10 टू गेट 12, different देयर डिफरेंस। बट व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस इज नथिंग बट द आंसर ऑफ मतलब क्या है सर आपका सब्ट्रैक्शन। ये बात आया समझिए, तो आपको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो फिर अब वही सवाल यहाँ पूछिए, व्हाट विल आई ऐड टू 2340 टू मेक इट मतलब क्या सर आपका 3000, देयर डिफरेंस। बट व्हाट इज़ देयर डिफरेंस, द आंसर इफ़ वी सब्ट्रैक्ट देम। सो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3000 माइनस मतलब क्या सर आपका 2340, दैट विल बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 0 minus 0 0। कैन आई सब्ट्रैक्ट 4 from 0, नो। कैन व्हाट कैन आई डू, cut 3 हम एक सिंपल सा बात पता है आपको, ये 30 को काटो और 30 क्या बन गया सर आपका 29, और इसी चक्कर में क्या है सर आपका ये 0 बन गया मतलब क्या सर आपका 10। नाउ 10 minus 4 is how many, 6, and 9 minus 3 is how many, 6 और 2 minus 2 is how many, 0। सर वो आप बोलेंगे सर हम ऐसा तो नहीं करते हैं, हमको लेकिन पता वो आप कैसा same ही करते हैं, हुआ, लेकिन सेम ही same। हुआ। आपका टाइम हम बचा रहे हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं बचाना है, टाइम लगाना है तो टाइम लगाइए, है ना। मतलब हम आपको बोल रहे हैं कि आप जाइए मतलब कार से, लेकिन आप बोले हम तो रिक्शा से जाएंगे सर, तो रिक्शा से जाइए सर, हम कुछ नहीं कर सकते सर, है ना सर, है ना। रिक्शा से जाना आपको, रिक्शा से अगर जाना है तो बोरो कीजिए, 3 बन गया मतलब क्या सर आपका 2, ये बन गया 10, फिर बोरो किए ये बना 9, और फिर बना ये मतलब क्या सर आपका 1। रिक्शा से आइए तो 0 minus 0 मतलब क्या सर आपका 0 हो गया, और 10 minus 4 मतलब क्या हो गया सर आपका 6 हो गया, 9 minus 3 मतलब क्या सर आपका 6 हो गया, और 2 minus 2 0। कभी कभी रिक्शा जाने में मज़ा आता है ना। तो रिक्शा से आइए, क्योंकि रिक्शा वाला का भी तो कमाई थोड़ा सा होना चाहिए ना सर। अगर हर कोई कार में जाए तो रिक्शा वाला कैसे घर चलाएगा। लेकिन आप रिक्शा से मत जाइएगा, आप रियल वर्ल्ड में रिक्शा से चले जाइए, मैथ्स में रिक्शा से मत जाइएगा, ठीक है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में रिक्शा से जाएंगे तो थोड़ा बहुत टाइम होता है, टाइम पास कर सकता है, लेकिन आप मैथ्स का सम कर रहे हैं, मतलब जो है सम करते मतलब ये क्वेश्चन पेपर आपको मिला, टाइम पास तो नहीं कर सकते हैं। घर बैठ के कभी कभी रिक्शा में चले जाइएगा मैथ्स में, लेकिन नॉट इन स्कूल। सर क्या सर, टाइम क्या हुआ, आपको छुट्टी चाहिए। हाँ वो आज जल्दी जाना है। अच्छा तो मम्मी से पूछ लीजिए, मम्मी अगर बोलेंगे तो अभी हम छोड़ देंगे आपको, ठीक है। बस लेकिन ये वाला करा के छोड़ेंगे, ये पेज नंबर 27 पूछ लीजिए। क्या तो हम लोग ये वाला सम तो मतलब क्या सर आप कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे क्या है सर आपका आंसर आया, मतलब क्या सर आपका 660 मतलब आंसर आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान से मतलब क्या समझते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है पढ़ो तो। A school founded in 1895 would celebrate its centenary. तो व्हाट इज़ मेंट बाय सेंटेनरी, 100 साल नहीं, हाफ सेंचुरी तो नहीं बोला, क्या बोला सर आपका, सेंटेनरी बोला ना सर आपका। तो अगर 100 साल किसी चीज़ को हो जाता है तो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सेंटेनरी। तो स्कूल फाउंड किया गया था मतलब क्या सर आपका 1895 में। Plus 100. हाँ वेरी नाइस। आपका स्कूल का फाउंड किया गया था, ये पता करना
और ये पता करके ये पता करना कि स्कूल का मतलब सेंटेनरी हो गया है या होगा। हो गया। अच्छा हो गया है, गुड। कब हुआ स्कूल का सेंटेनरी? आप सम करके बताना हमको ये बात, ठीक है? तो 5 प्लस, अच्छा कब हुआ सेंटेनरी? हमको उस क्यूरियोसिटी के लिए पूछे। कब नहीं हुआ वो नहीं पता। अच्छा लेकिन हो गया सेंटेनरी। अच्छा तो 5 प्लस 0 इज़ 5, 9 प्लस 0 इज़ 8 प्लस 1 इज़ 9 and 1 plus nothing is मतलब क्या सर आपका 1। So if the school was founded in 1895 it would celebrate its centenary in मतलब क्या सर आपका 1995। तो it has already been मतलब क्या सर आपका celebrated, क्योंकि 1995 तो कब का जा चुका है। अभी क्या चल रहा है सर आपका 2025, और ये स्कूल का सेंटेनरी हो गया था मतलब क्या सर आपका 1995 में। तो मतलब क्या है सर आपका 5 - 5 मतलब क्या है सर आपका 0। अब यहाँ पे क्या करना है, रिक्शा से आना है या फिर मतलब क्या है सर आपका कार से जाना है? अगर कार से जाना है तो ये बन गया मतलब क्या है सर आपका 19, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 1। तो 12 - 9 क्या हो चुका सर आपका 3, ठीक है। और 9 - 9 30 ईयर्स हो चुका। बताओ 30 ईयर्स पहले सेंटेनरी हो चुका है। सवाल हम लोग से पूछा अभी, ये क्या बात हुआ? अरे उसका पूछो, सेंटेनरी जो होने वाला है, जो हो चुका उसका पूछ के क्या करोगे? नहीं कुछ ही पूछ सकता, हम लोग को आंसर निकालना आना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या है सर आपका 1995 में। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द आंसर, द प्रोसेस क्या है सर आपका ऐड 100 टू इट। अच्छा अब यहाँ पे क्या है 893 में क्या ऐड करें कि 5893 आ जाए? equals to नहीं, यहाँ तो कुछ है ना। आंसर हाँ, equals to नो नॉट इक्वल्स टू 0। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको ऐड किया जाए तो वही नंबर आता है जो नंबर ऑलरेडी था 0, है ना? और यहाँ पे सिंपली ऐड करना है, ये तो सिंपल चीज़ है। तो 5 + 0 इज़ 5 + 0 is 5 and 5 + 5 is how many? 10। 10 So 0 will be written in 1's place and 1 will be मतलब क्या carried ना carry to 10's place. So this is in 10's place, this is in 10's place and this is 10's place. So 2 + 1 is how many? 2 + 1 is 3 3 and 3 plus मतलब क्या सर आपका 1 is how many? 3 plus 4 And 4 + 7 is how many? 11 11. 1 written and 1 is carried in which place? 1 is carried 1 carried 100's place. 100's place And this is also in 100's place. So 2 + 1 is how many? 2 + 1 3 And 3 + 4 is how many? 7 7. So the final answer is मतलब क्या सर आपका 7 and 10 ना। सर इसको आप होमवर्क करने के वक्त हॉरिजॉन्टली मतलब वर्टिकली मत कीजिएगा, आप उसको हॉरिजॉन्टली कीजिएगा। समझ में आया बात क्या आप लेना? अच्छा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ सक्सेसर? आगे जो बाद में आता है वो Yes. मतलब क्या होता है सक्सेसर होता है, ऐड और जो पहले आता है वो मतलब क्या होता है प्रीडिसेसर होता है। जैसे आप लास्ट क्लास में बताए थे, यू आर द सक्सेसर ऑफ योर फादर एंड योर फादर इज मतलब क्या सर आपका प्रीडिसेसर। लेकिन नंबर 21 में क्या होता है सर आपका, इफ़ यू आर एडिंग 1 to a number it is becoming मतलब क्या सर आपका इट्स सक्सेसर, and if you are subtracting 1 from a number it is becoming it's मतलब क्या सर predecessor. So in this case you want successor or predecessor? In this case you want मतलब क्या सर आपका successor, है ना? So what is the successor of मतलब क्या सर आपका 2898 2899 ना। और यहाँ पे सिंपली ऐड करना है। तो आई हैव 45, आई हैव मतलब क्या सर आपका 82 एंड आई हैव मतलब क्या सर आपका 90। सो व्हाट इज़ 0 + 2? 2 ओनली। एंड व्हाट इज़ 2 + 5? 7, 7 है ना? 7 written in which place? 1's place. 1's place Now what do we have? Nothing is 9. carried. 9 in 10's place, 9 8 in 10's place and 4 in मतलब क्या आपका 10's place. So 9 + 8 is how many? 17 and 17 + 4 is how many? 21. So the final answer is मतलब क्या सर आपका 217। आप वो लिखे थे क्या? समझ में भी नहीं आ रहा लिखे थे कि नहीं लिखे थे, है ना? लिखे थे ना? चलो यहाँ पे लिख देते 2899 और यहाँ पे क्या सर आपका 200 मतलब क्या सर आपका 17, है ना? अब देखो क्या लिखा है 4 10s and 9 1s, इसको 49। ये 10 का नोट है और ये मतलब क्या सर आपका 1 रुपये का 9 सिक्का है, तो 49 ही होगा ना सर। समझ गए रेफरेंस ना? गुड।
क्या हो जाएगा 4 109, है ना? पक्का? नहीं, रॉन्ग 40 लिखा हुआ है 49, क्योंकि 10 का अगर मतलब 10 का अगर 4 नोट है तो हो गया 40 रुपीज़, और 1 रुपये का 1 सिक्का होता तो 1 रुपी, 2 सिक्का होता तो 2 रुपीज़, यहाँ पे 9 सिक्का है तो मतलब क्या है सर आपका 9 रुपीज़। तो 40 और 9 कितना हो गया इस मिलके 49 रुपीज़, है ना? अब यहाँ पे देखो क्या है, 2310। यहाँ पे 2310 है। हम्म, अब देखो यहाँ पे क्या है, पैन में ये है, ये है, पैन में ये भी है, ये भी है। अब दोनों इक्वल है तो पैन में इसको तो होना ही पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना? आपको लॉजिक समझ में आ गया क्या? गुड। अब आ जाओ, यहाँ तो सिंपली ऐड करना है। लॉजिक समझ में नहीं आया ना? वही लॉजिक पैन का जो ऊपर दिए थे आपको, नहीं। ट्राइंगल वाला, याद आया? सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे समझो मतलब क्या है सर आपका, सर्कल है, सर्कल है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, अब स्क्वायर है इधर पे और इक्वल है। अब तीसरा क्या हमको नहीं पता, तीसरा को स्क्वायर ही होना पड़ेगा ना, और कुछ तो नहीं हो सकता है सर, और कुछ होगा तो इक्वल नहीं होगा। आया बात समझ में ना? 0 + 0 इज़ 0 and 0 + 2 is how many? 2 only. 2 written in 1's place, nothing is carried. In 10's place I have 1, 7 and nothing. So 1 + 7 is how many? 8. Nothing is carried again. In 100 place I have 4 and I have 2. So 4 + 2 is how many? 6. Nothing is carried. And in 1000's place I have 1 only. So I'll write on 1 only. तो यहाँ सर आप लिख लेते हैं, तो दैट इज़ मतलब क्या सर आपका गुड, दैट इज़ मतलब क्या सर आपका फाइन। अब आ जाइए आगे, हम लोग बात करते हैं, बात समझते हैं। क्लियर? यहाँ तक ये करके मतलब क्या सर आपका छोड़ देते हैं, है ना? गुड।